As you know, I'm Faisal in front of you. Today we are here to celebrate this second Saturday. As you know, today every student share our thoughts on different types, different topics. So I have two topics. First is attitude and second is study. I choose attitude topic because most of the students in our academy, in our institute, don't know the meaning of attitude. They think that attitude is always negative, but they are wrong. Attitude is not always negative. And ego and ignorance are always negative, but attitude is positive and negative both. It depends on it depends on the person that what type of attitude is. So let's I will tell you my topic is related to motivation type. So I used English and Hindi both in my speech because if I will deliver my speech in totally English, then it's not properly touch your heart. So for touch your properly heart, I use Hindi and English both. So can I speak? Thank you so much. Attitude. Most of the person don't know the meaning of attitude. They think that attitude is always negative. They are wrong. Attitude होता क्या है? असल में हमारी ताकत तीन चीजें हैं. First is mind, second is heart, and third is सबसे most important our attitude. एटीट्यूड है क्या? एटीट्यूड उस चीज का नाम है जो हम अपने बारे में सोचते हैं, जो हम अपने बारे में करते हैं, जो हम अपने आप में महसूस करते हैं, और ये बस एटीट्यूड ही सब कुछ है. जानना चाहते हो क्यों? क्योंकि तुम हारो या जीतो उसके पीछे जो रीजन है वो तुम्हारा एटीट्यूड है जो तुमने अपनी उस परफॉर्मेंस के वक्त दिखाया. नाउ बिकॉज वी विल बिकम व्हाट वी थिंक अबाउट योरसेल्फ. नाउ लिसन टू मी केयरफुली. हर जो सक्सेसफुल पर्सन है, जो सक्सेसफुल पीपल है, वो हमेशा अपनी लाइफ में कभी ना कभी मुश्किल दौर से गुजरता है. ऑल यू आर एग्री? यस, एवरीवन एग्री दैट जो सक्सेसफुल पर्सन है वो अपनी लाइफ में कभी ना कभी मुश्किल हालात से गुजरता है. तो मैं जो कहना चाहता हूँ कि जो ये आज हम मिलियनर्स या बिलियनर्स देख रहे हैं ना, इनकी इस पोजीशन के पीछे, इनकी इस ओहदे के पीछे इनका पैसा या जायदाद नहीं है, उनका एक अपना एटीट्यूड है जो उन्हें आगे बढ़ते रहने में हेल्प करता रहा, उन्हें सहारा देता रहा जब भी वो गिरने लगे. एंड दिस इज दैट लॉयल एटीट्यूड दैट टॉक अबाउट यू, दैट आई टॉक अबाउट यू. लाइक मिस्टर अनवर हैज अ वेरी गुड एटीट्यूड टू स्पीक इन इंग्लिश. इससे सीखिए, इनका जो एटीट्यूड है वो हाई लेवल, वेरी हाई लेवल टू स्पीक इंग्लिश. He know that I speak English in very well without hesitation, so he speak very good. असल में जो शेर क्या होता है ना, शेर होता है वो भूखा होता है. जब भी उसका कोई मिशन होता है वो एहसास दिलाता है कि वो है क्या. You know that what to do. You know very well that what to do. वो जानता है कि शेर शिकार पर सिर्फ मेरा हक है और मैं इसे हासिल करता रहूंगा जब तक कि मैं इसके लिए लड़ता रहूंगा, जब तक मैं इसे हासिल ना कर लूं, और इसे मुझसे कोई नहीं छीन सकता. वो राजा होता है जंगल का और सभी जानवरों का. तो बस बन जाओ एक शेर की तरह ताकि तुम भी ये जान जाओ कि तुम भी एक राजा हो. अपने मन के, अपने दिल के, अपनी सोच के. अपने दिल की सुनो, क्योंकि एक दिल ही है जो तुम्हें हर हालात में सही या गलत का फैसला बता सकता है. नाउ सेकंड टॉपिक इज माय रिलेटेड टू स्टडी. When study, what study? When we listen this word, we feel hesitation, we feel angerness, we feel very boring. What is attitude? Who created the study? Oh, study. Listen to me. Any successful person don't become that way overnight. What? Most people see at a glance happiness ahead. A great career purpose is the result of hard work and hustle over time. To be successful, you have to use each day as an opportunity to improve, to be better, to take a little bit to your closer to your goals. It might sound but like a load of hard work with busy schedule, next to impossible. But the best part is, the more you will want to do,
the higher you will want to be reach. As long as you will have the hunger for success, you will always have the power within you to achieve it. Like any student, एक स्टूडेंट होता है ना, अपने आप से कभी कसमें खाता रहता है कि यार बस सुबह से जल्दी जाकर उठकर पढ़ाई की जाएगी, पर आंख नहीं खुलती। सोचा कि आज मन लगाकर पढ़ाई की जाएगी, पर पढ़ाई में तो मन ही नहीं लगता। फिर सोचा कि आज रात देर तक जाकर पढ़ाई की जाएगी, पर कब आंख लग गई पता ही नहीं चला। पता ही नहीं चलेगा कि कब तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो गई है, पर पता चलेगा जब वक्त बीत चुका होगा। तब इस बात का एहसास होगा कि पढ़ना जरूरी था, मगर अभी तो तुम्हारे लिए थोड़ी देर मोबाइल चलाना जरूरी है, थोड़ी देर टीवी देखना जरूरी है, दोस्त का फोन आ गया उससे बात करना भी जरूरी है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ट्विटर, जितने भी वाहियात है इन सब पर नजर मारना भी जरूरी है, टिकटॉक की वीडियो देखना भी जरूरी है। ये छोटी छोटी चीजें कब बड़े बड़े कामों को रोकने की वजह बन जाती है हमें पता ही नहीं चलता। इन बेवजह की चीजों को अभी अपने काम की लिस्ट, जरूरी काम की लिस्ट से निकाल कर फेंक दो, क्योंकि ये कोई भी काम जरूरी नहीं है, हमने इन्हें जरूरी बना लिया है, हमें लत लग गई है इन सब चीजों की। और जब इन सब कामों को करने के बाद अगर हमें थोड़ा बहुत टाइम मिलता है तो हम पढ़ाई को देते हैं। याद रखो, एक सही समय पर उठाया हुआ एक छोटा कदम भी फ्यूचर में आने वाली बड़ी परेशानियों से हमें बचाता है। सो डू समथिंग टुडे दैट योर फ्यूचर विल सेल्फ थैंक यू फॉर। सुबह आंख नहीं खुलती तो सोना छोड़ दो कि आज सनराइज देखकर ही दम लूंगा, रात भर जागना पड़े, रात भर जागकर पढ़ूंगा। सोच लो कि जब तक ये चैप्टर कंप्लीट नहीं कर लूंगा तब तक खाऊंगा नहीं, तब तक सोऊंगा नहीं। डोंट स्टॉप व्हेन यू टायर्ड, स्टॉप व्हेन यू हैव डन। क्योंकि तुम्हारे लिए कुछ भी काम जरूरी नहीं होना चाहिए, कुछ भी नहीं, न खाना, न सोना, न पीना, न सोचना। जब सोचने जाओगे तब अपनी किताबों को बंद करके तब अपने ख्यालों की दुनिया में पहुंच जाओगे, पता ही नहीं चलेगा। जब भी ये बात मन में आए कि तुमसे नहीं होगा, तब हमेशा अपने आप को याद दिलाने देना कि मुझसे ही होगा, सिर्फ और सिर्फ मुझसे ही होगा। दिन में 2-3 घंटे पढ़ाई करने से कोई बड़ा तीर नहीं मार लेते हो, दिन में 24 घंटे पढ़ने की ठान लो। अब कहोगे कि ये तो पागलपन है, तो मेरे दोस्त पागलपन जरूरी है। अगर छोटे लोगों की तरह सोचोगे, उनकी तरह छोटे टारगेट बनाओगे, तो जिंदगी में कभी कुछ बड़ा अचीव नहीं कर पाओगे। सो ड्रीम बिगर एंड डू बिगर। याद रखना, इस दुनिया में ऐसा कोई मुकाम, ऐसी कोई मंजिल नहीं है, ऐसा कोई मुकाम, ऐसी कोई मंजिल नहीं है जो इंसान की पहुंच से दूर हो। स्टीव जॉब्स, माइकल जैक्सन, नेल्सन मंडेला, बिल गेट्स, सचिन तेंदुलकर, MS धोनी, ये जितने भी सफल लोग हुए और इतिहास रचा है इन्होंने कभी अपने मन में ऐसे नहीं सोचा कि मैं नहीं कर सकता। इन्होंने हमेशा अपने मन में सोचा कि सिर्फ मैं इस काम को कर सकता हूं और मेरा जन्म ही इस काम को करने के लिए हुआ है। इसी सोच ने उन्हें दुनिया का सबसे सफल आदमी बना दिया। उनकी इसी सोच ने ये साबित कर दिया कि इंसान जो कुछ चाहे वो सब कर सकता है, बस जरूरत है तो एक दृढ़ निश्चय और कभी ना टूटने वाले हौसले की। माय फ्रेंड, अगर आपने भी अपनी जिंदगी में अपने जरूरी कामों को अपने ड्रीम को अपनी जिंदगी का टारगेट बना लिया, तो बिना किसी की सुने उसकी तरफ पूरी शिद्दत से जुट जाइए और ये ठान लीजिए कि जब तक अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लूंगा तब तक चैन नहीं लूंगा। तुम्हारी जिंदगी भी एक बेकार स्टूडेंट की तरह नहीं होनी चाहिए। बेकार स्टूडेंट कैसा होता है? वो क्या करता है? आई विल टेल यू। वो सोएगा, जाएगा, खाएगा, मोबाइल चलाएगा, फिर सो जाएगा, फिर जो पढ़ाई की याद आई तो रोएगा कि मुझसे नहीं होगा। Why? I tell you that your limitations is only your just imagination. That's all. और कुछ नहीं है। वो फिर जागेगा, फिर खाएगा, फिर सो जाएगा। अरे इससे अच्छी जिंदगी तो एक गधे या एक मजदूर की है। कम से कम उसे अपनी जिम्मेदारियों का एहसास तो है कि मुझे करना क्या है, कि अगर आज मैं काम पर नहीं गया तो मुझे खाना नहीं मिलेगा। असल में जो गधा होता है ना, वो काम क्यों करता है? उसे काम करने में मजा नहीं आ रहा होता। उसे पता होता है कि जब मैं काम करूंगा तो मुझे शाम को चारा मिलेगा, और अगर अच्छा काम करूंगा तो शाम को एक गधी भी मिल सकती है। फिर मेरे एक छोटे गधी होंगे, उनको भी इसी काम पे लगा दूंगा। नहीं, हमारी जिंदगी ऐसी नहीं होनी चाहिए। टाइम गॉन, टाइम जा रहा है। आज माँ बाप खिला रहे हैं, कल कौन खिलाएगा?
कल जब तुम्हारे साथ वाला तुमसे आगे निकल जाएगा और जब वो अपने सपने पूरे कर रहा होगा, तब किसी सड़क पर पैदल धक्के खा रहे होगे और अपने आप को रोगे, फिर बहाने बनाओगे कि मेरी तो किस्मत ही ऐसी है। फिर किस्मत को दोष देते हैं। किसको धोखा दे रहे हो दोस्त? किससे झूठ बोल रहे हो? किसको बेवकूफ बना रहे हो? अपने आप को। कम से कम अपने आप से तो कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। आज एक प्रॉमिस करो कि जिंदगी में कुछ भी हो जाए, अपने आप से कभी झूठ नहीं बोलोगे कि कल पढ़ूंगा, सुबह पढ़ूंगा, शाम को पढ़ूंगा, आज तो 1 तारीख है, 30 से पढ़ूंगा, आज संडे है, मंडे से पढ़ लूंगा, अभी तो हाफ ईयरली एग्जामिनेशन हुए हैं, थोड़े दिन बाद पढ़ लूंगा, एग्जाम से तो 1 महीने पहले पढ़ लूंगा। अगर ऐसा होता ना तो ये IAS IPS है, ये कभी इतना नहीं पढ़े होते। अगर 2 दिन या 1 महीने पहले पढ़ के कोई सक्सेस मिल दिया, अपना हम टॉप कर पाते हैं। तो ये IPS IAS सालों साल मेहनत नहीं करते, लेकिन 2 दिन पहले पढ़ करके कर लेते, क्योंकि ये दुनिया भावनाओं को नहीं समझती। ये दुनिया किसी के दर्द को नहीं समझती। अगर यहाँ कुछ पाना है, कुछ बनना है, तो कुछ करके दिखाना पड़ेगा। अगर अपने माँ बाप का सहारा करना है तो कुछ करना पड़ेगा। मुझसे नहीं होगा, मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता। अरे क्यों तुमसे नहीं होगा? तुम्हारे पास ऐसा क्या नहीं है? यू हैव टू लाइक, यू हैव टू आईज, यू हैव टू ईयर, यू हैव टू हैंड। ऐसा क्या नहीं है तुम्हारे पास कि तुमसे नहीं होगा? क्योंकि जो तुम्हारी साथ वाला स्टूडेंट है जो टॉप करता है क्लास में, वो भी तो तुम्हारी तरह इंसान ही है। He has two eyes, he has two ears, he has two legs, he has two hands। लेकिन फर्क बहुत बड़ा है। तुम पढ़ाई करते हो सिर्फ काम चलाने के लिए। तुम पढ़ाई कर लो तो बहुत बड़ी बात है। तुम्हें तो पढ़ाई का मतलब ही नहीं पता पढ़ाई होती किस लिए। असल में पढ़ाई एक रास्ता है अपनी मंजिल तक पहुंचने का। और वो जो टॉप करता है, जिनका पढ़ाई में मन लगता है, उनको ये बात अच्छी तरह से पता है। उनके दिल में एक दर्द होता है, उनके सीने में अकाब होती है, उन्हें कुछ बनना होता है, उन्हें कुछ पाना होता है, इसलिए उनका पढ़ाई में भी मन लगता है। और वो ये अच्छी तरह से जानते हैं कि ये पढ़ाई का रास्ता ही मुझे मेरी मंजिल तक ले जा सकता है। They never wait to opportunity because they create it। लोग मोबाइल का बहाना बनाते हैं ना, तो देख लो, जान लो, सिर्फ तुम्हारे अकेले के पास ही मोबाइल नहीं है। मोबाइल तुम्हारे क्लास का जो टॉपर है उसके पास भी है मोबाइल। जान लो, आंखें खोल लो, अभी भी वक्त है, सुधर जाओ, अभी भी वक्त है, अभी भी वक्त है। अगर मेरा इतना बोलने के बाद भी तुम्हारे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, बेकार है ऐसी जिंदगी। मैं कहता हूं तुम्हें कुछ पोएट्री टाइप है। लिसन टू मी केयरफुली नाउ लिसन टू मी। जब भी हौसला टूट जाए ना, तब ये सुनना, हमेशा सुनना, हमेशा कहीं से भी देख लेना। बदल जाओ वक्त के साथ या वक्त बदलना सीखो। मुसीबत को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। फिर देखना एक दिन अपने ही नाम का शोर आएगा। लोगों का तो टाइम आता है, सुना होगा ना, अपना टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा, सुना है ना? यस, तो सुनो, लोगों का तो टाइम आता है, अपना तो दौर आएगा। मुश्किल जरूर है पर थमा नहीं हूं मैं। मंजिल से जरा कह दो कि रुका नहीं हूं मैं और पहुंचा नहीं हूं मैं। अभी तो असली उड़ान बाकी है, अभी तो असली इम्तिहान बाकी है। अभी तो लांगा है मैंने समुद्र को, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। सक्सेस उन्हें नहीं मिलती जिनके ख्वाब बड़े होते हैं, सक्सेस उन्हीं को मिलती है जिनके इरादों में जान होती है। मंजिल उन्हें नहीं मिलती जिनके सपने बड़े होते हैं, मंजिल उन्हीं को मिलती है जो जिद पर अड़े होते हैं। जीता नहीं हूं मैं पर हार नहीं मानी। अगर मेरे कुछ वर्ड से भी तुम्हारे पर थोड़ा बहुत भी असर हुआ हो ना, तो आज अपने आप से 2 प्रॉमिस करना। फर्स्ट, अपने आप से कभी झूठ नहीं बोलना, प्रॉमिस करो। अपने आप से कभी झूठ मत बोलना, कभी बहाने मत बनाना, अपने आप से हमेशा सच बोलना। कब करने वाला हूं और कब करूंगा तो करके ही रहूंगा। सेकंड, जो पढ़ना दिल से पढ़ना, किसी को दिखाने के लिए मत पढ़ना कि पापा आ रहे हैं तो नोटबुक खोल ली, कि मम्मी आ रही है तो बुक खोल ली। नहीं, जो भी पढ़ना दिल से पढ़ना। और मैं इसी के साथ अपनी बातों को खत्म करना चाहूंगा, क्योंकि
जिसको बात समझ में आनी होगी उसको तो 2 मिनट में दिया जाएगी, और जिसको बात समझ में नहीं आनी होगी उसके लिए मैं यहाँ खड़ा होकर 2 घंटा भी बोल लूं ना तो उसको घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और जान ये उम्मीद रखता हूं कि आप सब लोग उनमें से नहीं होंगे। तो जाग जाइए अपने सपनों के खातिर, अपनी माँ बाप की खातिर तो जाग जाइए। सो आई विल एंड माई स्पीच वाइथ 2 लाइन्स। लिसन, ड्रीम इट, विश इट एंड कैन डू इट। आई विल रिपीट, और मैं अपने वर्ड को चेंज कर रहा हूं। ड्रीम इट, बिलीव इट एंड बिल्ड इट। So thanks to listen carefully and have a nice day.